دروازے تم نے کھولے ہیں گستاخیوں کو. اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, خدا کی قسم بڑی حیرت ہوتی ہے. تم نے پہلے کہا مصطفیٰ ہماری طرح, ہم مصطفیٰ کی طرح, فرق کیا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہیں احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی یہی لوگ کر رہے ہیں, احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت تم کیا کر رہے ہو؟ سب سے پہلے گستاخوں کے لیے رستے ہموار تو تم نے کیے تھے نا, گستاخوں کے لیے دروازے تو تم نے کھولے تھے نا, گستاخوں کو موقع گستاخی کا تم نے دیا تھا. آج احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی کر رہے ہو, کہہ رہے ہو یہ گستاخی ہے, اس نے توہین کی ہے, گستاخی ناقابل برداشت ہے, ہماری تحمل سے باہر ہے, ہم گستاخی برداشت نہیں کرتے, مصطفیٰ کی گستاخی ہے. میں نے کہا تم گستاخ خود ہو, خود تم نے گستاخ بنائے ہیں, آج احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی کر رہے ہو. تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, کبھی کبھی رات کو چوری کرنے والے دن کو احتجاجی جلوسوں میں بھی قیادت کیا کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, دن میں جلوسوں کی قیادت بھی کرتے ہیں. کوئی پوچھنے والا, کوئی عاقل, کوئی فہم رکھنے والا, کوئی ذہن رکھنے والا پوچھے ارے چور صاحب رات کو چوری آپ کرتے تھے, آج صبح چوروں کے خلاف احتجاجی جلوسوں میں نعرے بھی لگا رہے ہو. کہا اگر ان کی قیادت نہ کروں تو ہماری چوری پر پردہ کیسے پڑے گا؟ میں نے کہا ارے کس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہو, کس کی آنکھ میں دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ اور لوگ ہیں جنہیں تم گمراہ کر لوگے. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ, پاکستان سے میں واپس آیا, ہمارے گھر پر کسی شخص نے دروازے پر دستک دی. ظاہری صورتحال اس کی ایسی تھی, داڑھی تھی اس کی, جبہ کبا پہنا ہوا تھا, بڑا خوبصورت امامہ پہنا تھا, آنکھ میں سرما تھا, ہمارے بچوں کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کر رہا تھا. یہ حبیبی حسن سراج شبلی محراب جبار, انہوں نے دروازہ کھولا. کہا کون ہو؟ کہا دین کے دائی ہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا بابا فرید الدین گنج شکر کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں, بابا فرید کی تعلیمات سکھانے کے لیے آئے ہیں, خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. میں اوپر کمرے سے دیکھ رہا تھا, انہوں نے سمجھا تھا ابھی پاکستان میں ہی ہوں, لیکن میں نے دیکھا یہ لگ رہے ہیں غیر, پتہ چل رہا ہے اغیار ہیں, پتہ چل رہا ہے کوئی مکر و فریب ہے, پتہ چل رہا ہے کوئی چالاکی ہے. ارے انہیں کیا لگے بابا فرید الدین گنج شکر سے. لیکن بچوں نے اس کو بٹھایا, کمرے میں بٹھایا, میں بھی کمرے کے ساتھ متصل کمرے میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیمات کو ہم بھی مانتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات کو ہم بھی مانتے ہیں, بڑے اولیاء ہیں, خلاف انہوں نے بہت بڑا کام کیا, بدعات کے خلاف انہوں نے بہت بڑا کام کیا, بدعات کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے, بدعت کو ختم کیا ہے, شرک کو ختم کیا ہے. میں سمجھ گیا اب اس کا چکر کیا ہے, اس کا فریب کیا ہے, یہ کس انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہے. یہ جانتا ہے کہ یہ اس گھر میں آیا ہے جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زبان پر پہلی بات ہی بابا فرید کی ہوتی ہے, پہلی بات ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہوتی ہے. میں اس کے چکر کو سمجھ گیا, میں اس کے فریب کو سمجھ گیا. اس نے کہا دیکھو آج بابا فرید کے نام پر بدعات پھیلائی جا رہی ہیں, آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر بدعات پھیلائی جا رہی ہیں. اسی وقت میں اس کے انداز تکلم کو دیکھ رہا تھا, اس کے لباس کو دیکھ رہا تھا. چند خوبصورت اشعار ترتیب پائے, چند خوبصورت اشعار بنے, اشعار میں نے لکھ لیے. اس کے سامنے گیا, کھڑا ہو گیا, مجھے دیکھتا ہے, کہتے ہیں آپ پاکستان سے کب آئے ہیں؟ کپ کپی تاری تھی, پسینے سے شرابور تھا. میں نے کہا میں آیا ہوں تیرے خبر لینے کے لیے آیا ہوں, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں صوفیاء کا پیغام عام کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تو صوفیاء کی تعلیمات پھیلا رہا ہے, تجھے کب سے شوق ہو گیا صوفیاء کی تعلیمات پھیلانے کا؟ میں نے کہا یہ کلام عارفانہ, یہ لباس صوفیانہ, ثاقب کے سامنے نہ چلے گا یہ بہانہ, سنا کہ یہ افسانہ کسی اور کو بہکانا, یہ چال بازیاں تیری ہم جانتے ہیں جانا. یہ چال بازیاں, یہ مکر ہے ان کا, یہ فریب ہے ان کا. لہٰذا آج کی اس کنونشن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ دین دشمن طاقتیں, وہ گستاخ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رعونت و نخوت سے کہہ دیا کرتے ہیں مصطفیٰ میں اور ہم میں فرق کیا, وہ ہماری طرح. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کی اس محفل میں پوچھنا چاہتا ہوں, آخر کس زاویے سے, کس پہلو سے, کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں. مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں, تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں. تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں. تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں, تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں. تم روزہ رکھتے ہو, سحری کرتے ہو, افطاری کرتے ہو, مصطفیٰ کریم جب
सौम विसाल रखते हैं, न सहरी है न इफ्तारी है, मुतवातर रोजे रख रहे हैं। सहाबा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, है सहाबा ऐसा न करो। सहाबा अर्ज करते हैं, इन्नका तुवासिलु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप भी तो सौम विसाल रखते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में मेरी तरह, कौन है तुम में मेरी तरह। मेरे आका के रोजे की तरह तेरा रोजा नहीं, मेरे आका की नमाज की तरह तेरी नमाज नहीं, मेरे आका के कलमे की तरह तेरा कलमा नहीं। इमाम इब्ने आबिदीन शामी किताबु ज़कात की इब्तिदा में बयान फरमाते हैं, मेरे आका पर ज़कात फ़र्ज ही नहीं थी, मेरे आका पर ज़कात फ़र्ज नहीं, तू ज़कात देता है। तेरे अरकान इस्लाम 5, मुस्तफ़ा करीम के अरकान इस्लाम 4, तेरा कलमा मुस्तफ़ा के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज मुस्तफ़ा की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोज़ा आका के रोज़े की तरह नहीं, तेरी ज़कात आका की ज़कात की तरह नहीं। तो आओ और इस हकीकत को बयान करें और हाथ बुलंद करके पूरे आलम तक ये पैगाम पहुंचा दें। ये मीडिया वाले लोग आए हुए हैं, ये पैगाम पूरे आलम में नशर किया जाएगा ताकि लोगों को इस हकीकत का इल्म हो जाए कि जो आका के गुस्ताख हैं वो और लोग हैं, ये और लोग हैं, वो और लोग हैं, ये और लोग हैं। हाथ उठा के ऐलान करोगे ना, मैं कहूँगा कहाँ मैं और तू, आप कहेंगे कहाँ मुस्तफ़ा। मैं कहूँगा कहाँ मैं और तू, आप कहेंगे कहाँ मुस्तफ़ा, कहाँ मुस्तफ़ा, कहाँ मुस्तफ़ा। 3 मरतबा कहना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब तक आपके हाथ नहीं उठेंगे मैं बोलता जाऊँगा, देखूँगा किसमें कितनी ज़रूरत है। अगर कोई हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, मैं जानता हूँ गैर नज़रियाती लोग भी आए हुए हैं, कुछ सवालात लेकर भी आए हैं, कुछ बातें पूछना भी चाहते हैं, लेकिन मैं भी आज हद्दे इम्तियाज़, हद्दे फासिल देखना चाहता हूँ। उनमें और तुम में फ़र्क कौन है? हाथ बुलंद करके कहोगे ना, कहोगे ना। मैं कहता हूँ कहाँ मैं और तू, कहो कहाँ मुस्तफ़ा, कहाँ मैं और तू, कहाँ मैं और तू, कहाँ मैं और तू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। आखिर किस तरह तुम खुद को मुस्तफ़ा की तरह कहते हो? बताओ ना मुझे, आखिर किस हैसियत से तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? तुम अपनी ज़ात को नहीं देखते, तुम बड़ी रऊनत से कह देते हो मुस्तफ़ा ने भी निकाह किया, हमने भी निकाह किया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी औलाद थी, हमारी भी औलाद है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ौजा थी, हमारी भी ज़ौजा है, उनकी भी अज़वाज मुतहरात हैं। तुमने शायद कुरान नहीं पढ़ा, तुम्हारी ज़ौजा के लिए कुरान करीम में कोई आयत नाजिल नहीं हुई, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की अज़वाज मुतहरात के लिए सूरह अहज़ाब में फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा। है मेरे महबूब की अज़वाज मुतहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मैं कहता हूँ अगर मुस्तफ़ा की अज़वाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं है, अगर मुस्तफ़ा करीम की अज़वाज मुतहरात आम बशरों की तरह नहीं है, तो मुस्तफ़ा आम बशरों की तरह कैसे हो सकते हैं? तूने कह दिया हम मुस्तफ़ा करीम की तरह, मेरी भी औलाद, उनकी भी औलाद। क्या तेरी औलाद के लिए कोई कुरान की आयत नाजिल हुई है? मुस्तफ़ा करीम के घराने के लिए रब फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रब तो गवाहियाँ दे रहा है उनकी पाकी की कुरान में, और आला हज़रत ने भी फरमा दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। न तेरी ज़ौजा मुस्तफ़ा की अज़वाज मुतहरात की तरह, न तेरा घराना मुस्तफ़ा के घराने की तरह। तू अपनी जात को देख, आखिर मुझे किसी तरह समझाने की कोशिश कर, मुझे बता दे, समझा मुझे कि तू आखिर किस तरह मुस्तफ़ा की तरह है। अरे तू थूक के देख, थूक के देख, तेरे थूक को देखते हैं। अरे तेरे थूकने पर, तेरे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है, तेरे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है। साद बिन मुआज सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जख्मी हो जाते हैं, जिस्म जख्मी हो जाता है। मेरे आका के लुआबे दहन को, मेरे आका के लुआबे दहन को, मेरे आका के मुबारक थूक को अपने जिस्म पर मलते हैं, जख्म खत्म हो जाता है, उनके थूक में शिफा है। तेरे थूक पे कोई थूकने के लिए तैयार नहीं। आखिर तू किस तरह कहता है कि तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है? आखिर तू किस तरह दावा करता है कि तुझ में और आका में कोई फर्क नहीं? और फिर तू अपने नाक की रतूबत को देख ले, अपनी बलगम को देख ले, लुआबे दहन को देख ले। तू नाक की रतूबत को थूक कर देख, अपनी बलगम थूक कर देख। लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं, कराहत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक की रतूबत बुखारी तूने भी पढ़ी है, बुखारी मैंने भी पढ़ी है, लेकिन आज तुझे आज कंजुल हुदा के मजमे में सही बुखारी सिखाऊं, आज तुझे बताऊं सही बुखारी क्या है। कभी काश तूने इश्क की ऐनक लगा के सही बुखारी का मुताला किया होता। अनिल मिस्वर इब्न मखरमा व मरवदत व मरवान रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला इन उर्वत जअल यरमुक़ु अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़वल्लाहि मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवहामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वदूहिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में उर्वा कहते हैं कि जब भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते, जब भी मैं मुस्तफ़ा करीम को देखता, मुस्तफ़ा करीम अपना लुआबे दहन फेंकते, मुस्तफ़ा करीम अपने नाक मुबारक की रतूबत फेंकते, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मेरे आका के नाक की रतूबत को अपने हाथों में लेते, अपने चेहरे पे मर लिया करते, अपने जिस्म पे मर लिया करते। तेरे नाक की गंदगी है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है, फिर भी तू कहता है कि तू मुस्तफ़ा की तरह, फिर भी तू कहता है हम में और मुस्तफ़ा में फ़र्क नहीं, हम मुस्तफ़ा की तरह। अरे तू अपने पसीने पे गौर कर ले, अपने पसीने पे गौर कर ले, देख ले अपना पसीना, तेरे जिस्म से पसीना निकलता है, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? बदबू आती है, बदबू आती है, तकलीफ होती है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, काश के तूने बुखारी पढ़ी होती, काश के तूने बुखारी किसी आशिक रसूल से पढ़ी होती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना तू क्या जाने क्या है। उम्मे सुलैम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना एक बोतल में जमा कर रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख खोलते हैं, फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्म सुलैम, है उम्म सुलैम क्या कर रही है, क्या कर रही है। उम्मे सुलैम अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहु लिसिबियानिना क़ाला असबती। उम्मे सुलैम कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। आपके पसीने से बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। उनका पसीना बरकत, उनका पसीना मुअत्तर और मुअम्बर कर दे आबो हवा को। तू कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह, तेरे पसीने को कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तेरे जिस्म के अंदर जो खुराक जाती है गलाजत बन के निकलती है, बदबू फैलाती है। लेकिन अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तअतिल ख़ला फला नरा शयअन मिनल अज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नजिदु राइहतल मिस्क। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आप जब बैतुल खला तशरीफ ले जाते हैं, हम कभी कभी आयशा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, हम जाते हैं देखते हैं आका कुछ नजर नहीं आता, फकत कस्तूरी की खुशबू फैली हुई होती है। तेरे जिस्म के अंदर गज़ा जाए, बदबू बन के बाहर निकले, बदबू फैलाए। मुस्तफ़ा करीम के जिस्म के अंदर गज़ा जाए, कस्तूरी की मुश्क आए, कस्तूरी की खुशबू आए, आबो हवा मुअत्तर और मुअम्बर हो जाए। मैं कहता हूँ तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं। अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून को देखा है? नजासत गलीज़ा है तेरा खून। तेरा खून क्या है? नजासत गलीज़ा है। किसी कपड़े पे लग जाए, उस कपड़े को पहन के नमाज नहीं अदा की जा सकती, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये तेरा खून है। कोई तेरा खून पीने के लिए तैयार नहीं, तेरे खून का कोई प्यासा नहीं। हाँ, गुस्ताखे रसूल है तो तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, उस माना में तो बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। उस माना में तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मेरे आका का खून पी लिया था। सईद बिन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद जनाब मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आका के जिस्म अथर पर जख्म देखा, फौरन जख्म चूस लिया, आका का जख्म चूस लिया, आका का खून पी लिया, आका का खून पिया। सहाबा देख रहे हैं ये क्या करेंगे, खून को थूकेंगे कहाँ? देख रहे हैं क्या ज़मीन पर थूकेंगे, कहाँ थूकेंगे? पूछा है सहाबी खून कहाँ थूकोगे? कहा ये खून मुस्तफ़ा है, इसे ज़मीन पर नहीं गिरने दूंगे। कहा क्या करोगे, क्या करोगे? कहा करूँगा क्या, निगल लिया है, पी लिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले, जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले। कोई तेरा खून पिए, हराम करे, गुनाह करे, खुदा नाराज हो, रब नाराज हो, अल्लाह नाराज हो, जहन्नुम में जाए। कोई मुस्तफ़ा का खून पिए, जन्नत में मौजें करे।
تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہاں مصطفیٰ؟ نہیں نہیں، ابھی میں جاری رکھتا ہوں، کہاں میں اور تو؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو؟ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم.